Well, so today we will discuss T.S. Eliot's two important works, which are number one, tradition and the individual talent, and the other is metaphysical poets. Though there are one more important work which is there in your syllabus, which is Hamlet and his problems. Oh, people are joining. Just a minute. Let me make people in. Who is that? Well, so one important work is there, that is Hamlet and his problems, that we will discuss another lecture. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया आपने? Yes, it is. Yes. Okay. ओके सर. All right. So the focus of this lecture will be on the three theories. One is the theory of impersonality, the other is objective correlative, and the third one is unification and dissociation of sensibility. In other things we will go in haste. Okay, I mean that is not much important. So we will begin with tradition and the individual talent. So here are some facts about this critical essay. That it was published in The Egoist, which came in 1919, and then later it was a part of the first book, which is The Secret Wood, which came in 1920. This essay is also available in his works Selected Prose and Selected Essays. Okay. This essay talks about the relationship between the poet and the preceding literary traditions. Okay. So by traditions here we mean the literary traditions. Okay. So yes, Sir, something historical, I think. yeah, we will talk about that. Yes, but that is related to literature only. Okay. And you know, here the poet says that a poet, whenever he writes or he creates a creative work, he must embody the whole of the literature of Europe. This is important. He says of Europe from Homer. You know, he has been criticized because he has, you know, talked about Eurocentric mind, but Eliot himself has neglected that he is Eurocentric. You must have read his four quartets, right? And that wasteland, Datta, Damya, Dayadhvam. Okay, and that four quartets has a reference from Mahabharata, especially the shlokas of Gita. Okay, so he has himself, you know, denied that concept, you know, that criticism. But this is also true that he has written this in this work, that a poet must embody the whole of the literature of Europe from Homer. Okay. Well, so this essay is divided into three parts. One is Eliot's concept of tradition, and the other is his theory of impersonality of poetry, and then summary of the essay. So we will have a little discussion on what is his concept of tradition, and then we will quickly move to the theory of impersonality. So for him, tradition doesn't mean a blind adherence, okay, so of the previous generation. So we must not follow the tradition blindly. This is one important point. The second point, important point, that it cannot be inherited. Okay, though the traditions, if we talk about, you know, social traditions, cultural traditions, they are generally inherited, right? You learn from the traditions of the society you belong to, of the culture you belong to, but literary tradition cannot be inherited. Okay, this comes, how does this come? Through hard labor. Okay, so you do a lot of study of the previous poets, previous dramatists, or, you know, anybody who has done work on literature, and that is the hard labor that is being referred here. Okay. Tradition can only be obtained by those who have historical sense. So if you have the historical sense, by historical sense means, you know, the sense, you know,
of the poets and the literary personalities of the past. Some sound is coming some from. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Clearly audible. All right. Okay. Okay, sir. Then the sense of tradition implies, okay, it implies recognition of the continuity of literature. किसी का माइक खुला हुआ है क्या? So again, this continuity of literature, what does this mean? That from the beginning to the end. जैसे मैं आज के टाइम में अगर कुछ वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो हमको from the beginning till the present time I must have the historical sense of what? Of literature written over the period. Okay. A critical judgment as to which of the writers of the past continue to be significant to the past continue to be significant in the present. So आज हम अगर कोई भी लिटरेचर लिटरेरी वर्क लिखने वाले हैं तो it must have a relationship to the past, and if we have the knowledge and if we have applied that knowledge of the past literature into the present work that I am going to write, it will have a significant significance in it, okay, or it will become more important. A knowledge of the significant writers obtained, okay, so by this tradition it has historical sense, and in that historical sense the history of the significant writers of different ages from the beginning to till the present time, okay. And how do you obtain that? By painstaking effort, okay. So you read a lot, only then you can develop that historical sense of the tradition, okay. I repeated other traditions like social tradition, cultural traditions, then these things are inherited by us, okay. We learn by seeing. हम जैसा लोगों को देखते हैं वैसे ही ट्रेडिशंस हमारे अंदर डेवलप होती जाती है, इधर इट इज रिलीजियस ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन और सोशल ट्रेडिशन. बट Eliot here talks about literary tradition, okay. So literary tradition is not inherited. How does it come? By the efforts. You read a lot and then you get a sense, you get a historical sense of the tradition of literature. Now he says that knowledge gleaned by a poet is not knowledge of facts. ये important है. He does not talk about knowledge of facts, but knowledge which leads to greater understanding of Europe. He is continuously repeating the mind of Europe, okay. So many times this is important, okay. He especially talks about Europe, not about the rest part of the world, though he was highly influenced by Indian philosophy of religion, right, and this is quite clear in his works. But in this essay he talks about Europe or Eurocentric tradition of literature, okay. Now in the previous slide we have discussed that he talks about painstaking effort through which you can develop the literary sense, sense of tradition, literary tradition, okay. So he gives example of Shakespeare. So you know that many of the works of Shakespeare are from Plutarch's history, right. So he says that Shakespeare acquired more essential history from Plutarch than most men could from the World British Museum, okay. So he has done a lot effort in getting the historical sense of tradition, and that is why he could create a work which is timeless, okay. So it is dynamic. The concept of tradition is dynamic, okay. It isn't fixed, okay, or static. It is constantly changing, okay. So something has been written by Shakespeare and something has been written by other dramatists which came after Shakespeare. But if you have the historical sense, then you can correlate the things, okay. So it grows and become different from what it is, okay. So when a new work is created, the whole tradition is literary tradition is modified, okay.
So this is how you change the literary tradition. First you have the historical sense of tradition, and then when you create your own work, you develop a new kind of literary tradition. Okay. So the relationship between the past and the present is not one-sided. It is reciprocal. Okay. Reciprocal means, do you know the meaning of reciprocal? If you say happy Diwali to me, I can say I reciprocate the same feelings. What does it mean? मतलब मैं भी आपको वैसी ही फीलिंग्स वही विश कर रहा हूँ जो आप हमको कर रहे हैं, राइट? सो इट इज़ नॉट वन साइडेड. Past and the present are interdependent. So the past directs the present and is itself modified and altered by the present. So it gives the direction and it is altered by the present. What is altered by the present? The past is altered by the present. Okay. Oh, somebody wants to join perhaps. शैलेश जी नमस्कार. शैलेश जी, can you hear me? Am I not audible? Audible, sir, audible. Okay, okay. Yes. Now, what is the, what? Oh, somebody else has come. सूरज यादव. सूरज जी नमस्कार. ये नए लोगों को मुझे लग रहा है मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ. शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर हमें तो आ रही है. अच्छा ठीक है. ओके ओके. So the function of tradition, the work of art of a poet in the present is to be compared and contrasted with the works of the past. Okay. So पहला ये important point है कि अगर हम हमारे अंदर historical sense of tradition है, तो अगर हम किसी के भी वर्क पर हम अपना critical judgment देना चाहते हैं, then it will be a better judgment. Okay. So but one important thing that he says that the judgment is neither good nor bad. Okay. It is just a critical analysis of some work. Okay. The comparison is for knowing the facts about the new works of art. Compare हम क्यों करते हैं? So that we can know what was in the past and what is in the present. Past की tradition क्या थी और जिस राइटर ने जिस टाइम पर भी लिखा है उस टाइम पर वो ट्रेडिशन क्या हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि ट्रेडिशन इज नॉट स्टैटिक. ओके, इट्स डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. द कंपैरिजन इज फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड फॉर्मिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू. सो जो हम पास्ट से प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हैं, बाय प्रेजेंट हियर आई मीन द प्रेजेंट ऑफ द पोइट हु इज बीइंग एनालाइज्ड. ठीक है, जैसे आप शैली को अगर आप एनालाइज करें इन रिलेशन ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ऑफ शैली. नाउ व्हाट डज ही मीन बाय द सेंस ऑफ ट्रेडिशन? ही डजंट मीन टू नो द पास्ट एज अ होल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. But and the sense of tradition doesn't mean that a poet should know only a few poets whom he admires. ये देखिए, ये बहुत important है. केवल इतना ही नहीं जिसको वो admire करता है. So you must have read that this poet was influenced by that poet was influenced by that. Okay, and that's why his poetry is like that. So that is not good in the view of Eliot. Okay. He says this is a sign of immaturity and inexperience. Okay. So if you have the knowledge of the only the poets or literary artists whom you like, whom you are influenced by, and accordingly you produce the work of art that is immature and inexperienced creative work of art. Okay.
So he says that you must be impartial. Okay, so with the eyes which are not partial, you should develop the sense of historical sense of tradition. Okay, historical sense of tradition. Now this is important. Anything that you want to discuss about his tradition, concept of tradition? Nothing. Okay. Now impersonality is of if you divide this word in morphemes पढ़े हैं ना आपने, morphology तो पढ़ चुके हैं, है ना. Im and then personality. Okay, so it is the extinction of personality. So Eliot says honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. But before we understand these points, let us understand what does he mean by the theory of impersonality. Is that clear till here? Is everything clear? Yes, sir. Okay. Now see this. I believe that you have heard about this, the analogy of platinum, sulfur and carbon dioxide analogy. आप लोगों ने पढ़ा होगा. वो कहते हैं कि when a piece of platinum is introduced into a gas chamber which has sulfur and carbon dioxide. Okay, so this platinum is introduced in a chamber which has sulfur and carbon dioxide, right? So what will it produce? What will it produce? It will produce what is that the name of that S2SO3 को क्या बोलते हैं उसमें? Oh, it creates sulfuric acid. Okay. Now, if you have read chemistry, you must be knowing that by SO2 plus O2 is H2SO3. Okay, and this happens only and only if you introduce platinum in that chamber. ठीक है, बिना प्लेटिनम के को इंट्रोड्यूस किए हुए SO2 और O2 मिलकर के H2SO3 नहीं बना सकते हैं. ठीक है, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट. बट H2SO3 डज नॉट हैव एनीथिंग फ्रॉम प्लेटिनम. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्लेटिनम को बिना इंट्रोड्यूस किए हुए SO2 और O2 H2SO3 नहीं बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन H2SO3 में प्लेटिनम का कुछ नहीं होता है. इट हैज नथिंग टू डू विद, आई मीन इट डज नॉट हैव इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ प्लेटिनम. इट इज नॉट influenced by platinum, or in other words you can say the personality of platinum is not in H2SO3. Okay, so what is the function of platinum then? The function of platinum is that of catalyst. कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट का काम क्या होता है बताइए कोई भी. व्हाट इज कैटालिस्ट? बीच बीच में बोलते रहिए सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑडिबल. कोई भी बताइए कैटालिस्ट क्या होता है? ओके, सर ये पढ़ा तो है लेकिन ये ठीक है, ठीक है. सो कैटालिस्ट इज अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो इट इज ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन. सो प्लेटिनम, अगर हम केमिस्ट्री में हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? ये जो SO2 और O2 का वो रिएक्शन है, इसको क्या कर रहा है? स्पीड अप कर रहा है ये. ठीक है, उसके लिए वो एक कॉज बन रहा है, कॉज टू हैपन. ठीक है, सो रिएक्शन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्लेटिनम. सो प्लेटिनम इज कैटालिस्ट. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ पोइट्स माइंड, अब पोइट क्या करता? पहले ये समझ में आ गया आपको? एनालिसिस इतना समझ में आ गया कि प्लेटिनम और ये SO2 और O2 क्या है?
SO2 में सल्फर एंड देन कार्बन एंड दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, सल्फरिक एसिड क्रिएट करते हैं। बट H2SO3 में प्लेटिनम की पर्सनालिटी नहीं होती है। प्लेटिनम इज जस्ट अ कॉज फॉर द रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2। ओके, सो H2SO3 इज इम्पर्सनल, ठीक है, इट हैज नथिंग, नो एलिमेंट ऑफ प्लेटिनम इन इट, सो इट इज जस्ट कैटलिस्ट। ऐसे ही पोइट इन द वर्ड्स ऑफ इलियट, पोइट के अंदर क्या होती हैं, इमोशंस होती हैं प्लस फीलिंग्स होती हैं। तो आप इमोशंस को ले सकते हैं, SO2, O2 को ले सकते हैं, फीलिंग्स, ठीक है ना, जो भी सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उसकी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी उसके माइंड के अंदर है, पोइट एज अ कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन, ओके, reaction towards emotions and feelings or whatsoever he has in his mind, and then the poem is created. And poem does not have anything, any particle of poet's own personality. Poet is just a catalyst, ठीक है। तो इम्पर्सनल है, मतलब जब आप पोइट्री को, अगर आप T.S. इलियट की पोइट्री को पढ़ें तो आप उसमें ये कहेंगे कि इलियट एज ए पर्सन इज नॉट देयर इन द पोइट्री, दो इलियट इज ए कैटलिस्ट बिकॉज ही हैज बीन द कॉज ऑफ बिहाइंड क्रिएटिंग this work, right? But Eliot is not there in the poetry. So he says that whenever you analyze a poetry, you must not think about the poet, though you must have the historical sense of tradition, literary tradition, but you must not think about the poet. Now you can relate it with the practical criticism, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की। प्रैक्टिकल क्रिटिक्स क्या कहते हैं, दैट द टेक्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ऑथर, राइट, द ऑथर इज डेड फ्रॉम देम। वही इलियट कह रहे हैं कि पोइम के अंदर पोइट नहीं है, पोइम इज इम्पर्सनल, पोइट इज नॉट देयर, राइट। सो पोइट क्या होता है, पोइट इज जस्ट अ कैटलिस्ट। आई होप यू हैव गॉट इट। यस सर। ओके, सो अगर मैं उनकी पूरी वो पढ़ दूं आपको, हाँ, देन ही सेज द माइंड ऑफ द पोइट इज द श्रेड ऑफ प्लेटिनम, लाइक जैसे प्लेटिनम होता है कैटलिस्ट, वैसे ही ये है। इट मे पार्टली और एक्सक्लूसिवली ऑपरेट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हिमसेल्फ, सो द माइंड ऑफ द पोइट ऑपरेट्स ऑन द इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट, or whatsoever the poet has in his mind. The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates, ठीक है। तो जो कुछ भी जितना परफेक्ट पोइट होगा उतना ही इम्पर्सनल होगा पोइट। द मोर परफेक्टली विल द माइंड डाइजेस्ट एंड ट्रांसम्यूट द पैशंस विच आर इट्स मटेरियल, ठीक है। तो उसके माइंड में जो भी मटेरियल होता है वो तभी उसको परफेक्टली प्रोड्यूस कर सकता है जब वो इम्पर्सनल हो सके। इज दैट क्लियर? नाउ थ्रू दिस theory of impersonality, he criticizes or goes against Wordsworth. वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। इन्होंने यो इलियट हैवली क्रिटिसाइज्ड द रोमांटिक्स। क्यों? बिकॉज रोमांटिक्स की पोइट्री हाईली पर्सनल है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, यू रिकलेक्ट देम इन द स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ स्ट्रेसेस ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब आपकी भावनाएं क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम सब्जेक्टिव। द सब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट मीन्स द पोइट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द पोइट्री, बट इलियट इज ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह तो पढ़ा ही होगा सभी ने, आई बिलीव सो। तो आप लोग मतलब स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते होंगे सब्जेक्टिव राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव राइटिंग, राइट। जैसे आप
कोई लैब की जब रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे केमिस्ट्री की लैब की रिपोर्टिंग है, अगर आपको यही रिपोर्ट करना है कि SO2 और O2 के मतलब इनके रिएक्शन से क्या होता है, तो आप उसमें क्या ऐसे लिखेंगे, व्हेन आई इंट्रोड्यूस, प्लीज लिसन टू माई, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, आप मतलब दो तरीके मैं बता रहा हूँ लिखने का। व्हेन आई इंट्रोड्यूस प्लेटिनम in the gas chamber which has SO2 and O2, then the reaction between these two gases speeds up and as a result we get H2SO3। ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, when platinum is introduced, पहला वाला मैंने पैसेज स्टार्ट किया था when I introduce platinum, दूसरा मैंने स्टार्ट कैसे किया है when platinum is introduced into a gas chamber। What is the difference between the two? When I introduce platinum and when the platinum is introduced? Yes? Sir, objective approach. Right. The second one है objective approach. So I believe आप भी बच्चों को पढ़ाते होंगे कि भाई जब आप लैब की रिपोर्टिंग करते हैं तो पैसिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, बिकॉज उसमें ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट, राइट। तो वही ये कहते हैं, वो कहते हैं, एलियट कहते हैं कि यू मस्ट बी इम्पर्सनल, यू मस्ट पुट योर पर्सनल फीलिंग्स असाइड, ठीक है। आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है प्लस हिस्टोरिकल सेंस ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है, उसके साथ में जो भी क्रिएशन आप कर पा रहे हैं वो कैसे पर्सनल फीलिंग से डिवॉइड ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। सो इसी वजह से जो वर्ड्सवर्थ कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ओके। सो एलियट सेज इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, ओके। रोमांटिक्स के लिए इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इनके लिए क्या है, इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। So he rejects the concept of self expression. Is there any doubt till here? Okay, there seems to be no doubt. Now part third is summary of it, but a somewhat related concept to this impersonal theory is the concept of objective correlative as well. Though we will discuss the theory of objective correlative when we talk about Hamlet and his problems, but just to have a sense of relativity, let us discuss a little, okay. These things we will discuss later, okay, when we talk about Hamlet and his problems, I mean the theoretical concept of it. A little bit about, he says in objective correlative, emotion in art can be achieved by specific and almost formulaic prescription of a set of objects including events and situations, right। वो ये कहते हैं कि आपकी पर्सनल इमोशंस आपको नहीं लानी वहाँ पर, लेकिन ऑडियंस के माइंड में तो इमोशंस क्रिएट करनी ही है आपको, ठीक है। अगर ऑडियंस के अंदर वो रस, जो आपको अगर याद होगा रसा थियरी के बारे में, ठीक है ना, अगर वो रस क्रिएट नहीं होगा तो ऑडियंस वॉन्ट बी इन्वॉल्व्ड। इमोशंस तो क्रिएट करनी है बट नॉट द पर्सनल इमोशंस, राइट। वो कैसी होनी चाहिए, थ्रू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इवेंट्स एंड सिचुएशंस। नाउ इफ यू कैन रिमेंबर दैट थियरी ऑफ इंडियन पोइटिक्स where we talked about Vibhav, Anubhav and Vyabhichari, याद है थोड़ा बहुत? Yes sir. तो विभव में क्या था, there were two parts of विभव, आलम्बन and उद्दीपन, right। आलम्बन क्या है, हीरो एंड हीरोइन एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब उनके बीच में जो डायलॉग चल रहा है, तो अगर केवल ही डायलॉग चलता रहे और कुछ ना हो तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डल, नीरस हो जाएगी स्टोरी, ठीक है। तो उसके साथ में उन्होंने बोला था कि विभव में आलम्बन होना चाहिए, उसके बाद साथ में उद्दीपन होना चाहिए, ठीक है। तो उद्दीपन क्या है, सेंसुअल ब्यूटी, है ना। तो अब वो सेंसुअल ब्यूटी कहाँ से आएगी, थ्रू ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इवेंट्स एंड सिचुएशंस, राइट।
जैसे कि अब इसको देखिए, ये इमेज देखिए, नाउ लुक एट द फर्स्ट इमेज. So the background scenery and the balloons, are these things in coherence with the state of art of the girl? The girl in photograph 1 seems to be happy, right? Now, can you relate this happiness with balloons flying in the sky, and she is holding the balloons in her hand, and you know the scenic beauty, ठीक है ना? Now look at the second image. So the girl seems to be very gloomy. She has a cigarette in her hand, and then you can see the atmosphere, the black scene, the black background, and it's raining. Okay. So do you think that the objects which he talks about here, set of objects, right? Correlated objective sign. Do you think that the signs that have been created in these two set of pictures, they are correlated? Yes or no? Yes, sir. So now what are you doing? You are relating the objective correlative. So you are correlating the objects with the feelings of the character. Getting my point? आपने बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसे ही देखा होगा. अब यहाँ पर ये जो अमरीश पुरी है, ये सीन आप बता सकते हैं कौन सी मूवी का है? कर्ण अर्जुन. वाह, क्या बात है, बहुत मूवीज देखी हैं. तो ये इस देखो, ये इस सीन में अगर मतलब जैसे जो जब मतलब लास्ट होता है, विलेन मरने वाला होता है, तो वहाँ पर अगर बड़े बड़े ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगा दो आप, रोज है ना, ये इन सब के फ्लावर्स वगैरह लगा दो, तो अच्छा लगेगा. मतलब वो मारा जा रहा है, विलेन मर रहा है, और आपने जो सीनिक ब्यूटी लगाई है वो कैसी लव सीन वाली लगा दी है, अच्छा नहीं लगेगा ना. सो द ऑब्जेक्ट इज नॉट कोरिलेटेड विद द इवेंट, राइट. आप लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन देख लीजिएगा. स्लीप वॉकिंग सीन ऑफ लेडी मैकबेथ कोरिलेट्स her state of mind with the events that are occurring. ठीक है? Is that clear? I hope it's clear. Yes, sir. Okay. Now we'll talk about this object, the concept of objective correlated in relation to Hamlet and his problems when we talk about that essay. Okay. So when you have the related objects to relate the feelings or emotions of the poet, then you become impersonal actually, right? Okay. So to summarize, Eliot concludes, poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. Eliot does not deny personality or emotion to the poet, only he must depersonalize his emotion. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये नहीं कहते कि आपको अपनी इमोशंस वहाँ पर पोइट्री में नहीं दिखानी है. इमोशंस तो जाएंगे, लेकिन इमोशंस कैसे जाएंगे उसमें? थ्रू डीपर्सनलाइजेशन, थ्रू द कोरिलेशन ऑफ द इवेंट्स. ओके. The poet can know what is to be done if he acquires a sense of tradition. क्या पोइट को क्या लिखना है वो तभी वो उसको समझ में आएगा जब उसको सेंस ऑफ ट्रेडिशन होगा. सेंस ऑफ ट्रेडिशन किस ट्रेडिशन का? लिटरेरी ट्रेडिशन. द हिस्टोरिक सेंस विच मेक्स हिम कॉन्शियस नॉट ओनली ऑफ द प्रेजेंट. सो इफ दैट पर्सन हैज हिस्टोरिक सेंस ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशन, तो एक तो प्रेजेंट के बारे में भी उसको पता चलता है, एंड ऑल्सो ऑफ द प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट. ठीक है. सो हाउ दिस प्रेजेंट मूवमेंट इज रिलेटेड टू द पास्ट, इसके बारे में भी उसको पता चलता है. So this was all about tradition and individual talent. If you have any question, you can ask. Otherwise, we'll move to the next essay. I give you 2 minutes to think, and you can ask questions, or I'll repeat the slides, giving you 1 or 2 seconds for each slide. You can then ask questions if you have any.
we begin from here. I'll give 10 seconds to each slide. Please tell me if there is anything which you want to get re-explained. This slide I did not explain, but I believe now it has become self-explanatory. You read these points and ask me if you have any doubt. Any doubt here in these points? No, sir. All right. Yes, one important thing here, we talked about this theory of impersonality, okay, and the theory of tradition as given by Eliot. Okay. Now एक contrasting concept है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, जो कि हैरोल्ड ब्लूम ने 1973 में दिया था, in his book The Anxiety of Influence, a Theory of Poetry. इस थियरी में वो बात क्या करते हैं, ही गोज अगेंस्ट द व्यूज ऑफ इलियट. हिज थियरी एनविजन्स द स्ट्रॉन्ग पोइट टू एंगेज इन अ मच मोर एग्रेसिव एंड tumultuous रिबेलियन अगेंस्ट ट्रेडिशन. तो वो कहते हैं, एलियट कहते हैं कि यू नो, अच्छा somebody has wants to join perhaps. शशिकला जी नमस्कार. आपने अरे गॉड, तो वो पता बहुत सारा छूट गया आपका, एक पूरा एक ऐसे पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. ओके, आप लोग अब ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आप वो देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा बाद में. ओके यस, सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉन्ट्रास्ट करता है इलियट को, ये याद रखना पड़ेगा. एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बाय हैरोल्ड ब्लूम विच गोज अगेंस्ट एग्रेसिवली अगेंस्ट ट्रेडिशन. ओके, ऑलराइट. यू प्लीज हैव दिस मेंटल इमेज इन योर माइंड, क्योंकि एक इसमें कोटेशन आता है जो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ. When a piece of platinum is introduced into a gas chamber containing sulfur and carbon dioxide, the two combine to form sulfuric acid, but the platinum itself remains unchanged. The mind of the poet is this platinum. The emotions and feelings are sulfur and carbon dioxide. The more perfect he is as a poet, the less involved is his own personality. The artist's mind keeps forming new compounds, but he remains separate in the whole process of creation. The mind that suffers is different from the man that creates. Okay. So इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. ओके, यस. नाउ we'll discuss now metaphysical poets by T.S. Eliot, which came in 1921. So the complete name of this essay is Metaphysical Lyrics and Poems of the 17th Century, done to Butler. ये याद रखना है, done to Butler. इसमें confusion कर देते हैं.
बटलर के नाम की जगह पे कुछ और लिख देंगे उसमें, ठीक है। Selected and edited with an essay by Herbert J.C. Grierson। ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि एक ऐसे किसका है, क्योंकि ग्रियर्सन 2 है आपके सिलेबस में। दूसरे ग्रियर्सन के बारे में पता है आपको? नो सर। अच्छा ठीक है, हम उनकी थोड़ी बात करेंगे, हमने अलग से रखा है क्योंकि सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हर्बर्ट जेसी ग्रियर्सन ने एक ऐसे लिखा था, मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो इन्होंने क्या किया, एलियट ने इस ऐसे का रिव्यू किया है अपने इस ऐसे में, ठीक है। नाउ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स मेटाफिजिकल लिरिक्स, वी लेट अस हैव अ लिटिल डिस्कशन on the other Grierson. You have a topic in linguistics, language planning. Is that done? Language planning? नॉट येट सर। Okay, वो होगा लेकिन मैं केवल ग्रियर्सन की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगा, ठीक है। ग्रियर्सन जो है ना, ये वाले ग्रियर्सन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और ये वाले ग्रियर्सन कौन है? हर्बर्ट जेसी ग्रियर्सन। ओके, तो इसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में दे सकता है कि वो किसकी पोएम को एनालाइज करते हैं, हर्बर्ट जेसी ग्रियर्सन की या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, क्योंकि दोनों ही सिलेबस में है, ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज इन द इंडियन, एक सेकेंड, हाँ, सो he is the first person who did linguistic survey of India, which is popularly known as LSI। okay, so ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे उन्होंने ये किया था, और पहले इंसान थे भारतीय भाषाओं के बारे में सर्वे करने वाले, ठीक है। और इन्होंने 364 लैंग्वेजेस और अदर डायलेक्ट्स की स्टडी की थी। तो एक सेकेंड, देयर इज सम इम्पोर्टेंट वर्क परहैप्स। क्या है यार? ओटीपी आया होगा अंकल, है नीचे ओटीपी आया होगा। मोबाइल ले लो मेरा, कहाँ है? एक सेकंड, देयर इज एन इम्पोर्टेंट वर्क। जस्ट 30 seconds प्लीज। ये I'm sorry, there was some important work. नो प्रॉब्लम सर। Okay, No problem, sir. that's okay. Thank you. Okay, so yes, we were talking about George Abraham Grierson. Okay, so you know, he was the first person who did linguistic survey of India, and he described 364 languages, and this project was approved in 1891 and was formally begun in 1894, and 30 years तक इस पे काम हुआ, और 1928 में इसके रिजल्ट्स पब्लिश हुए, ठीक है। आज भी जब भी हम मतलब लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स इज़ बाय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अगर इंडियन लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम, ठीक है। और इट हैज़ 11 वॉल्यूम्स, लेकिन इसमें एक था जो एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ था कि इन्होंने जो बर्मा और मद्रास के प्रोविंसेस थे उसको निगलेक्ट कर दिया था। उस समय उनको प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर बोलते थे, तो उनकी बारे में बात नहीं की थी, तो इनको जो है ना डिप्राइव्ड स्टेट्स बोलते थे वो, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसके बात कर लें तो उसके बाद में सेकेंड प्रोजेक्ट आया जो कि लैंग्वेज डिवीजन ऑफ ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इन 1984 में दोबारा से किया गया इसको, ठीक है। तो इसमें केवल इतना काम था कि जो ग्रियर्सन स्टडी करके गए थे, ठीक है, तो उस स्टडी के बाद में क्या क्या चेंजेज आए हैं वो स्टडी की गई है 1984 में, ठीक है। और उस स्टडी में उन्होंने पाया कि 2001 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ 122 मेजर लैंग्वेजेस एंड 1599 अदर लैंग्वेजेस। लेकिन ये अब क्योंकि रिसेंटली ये हमारा 2001 में 11 में हुआ है सेंसस,
तो यहाँ पे बात करते हैं 1369 rationalized mother tongues and 1474 names which were treated as unclassified. ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे। how many official languages are there as per the 8th schedule? Sir, 22. Okay, which 22, sir. okay, which are classical languages? Any idea about class? Sanskrit. हाँ ठीक है। Sir, Malayalam. हाँ, Tamil. तमिल, मलयालम, संस्कृत। There are 6 languages. Okay. तो तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया एंड तेलुगु। ओके, अच्छा ठीक है। हिंदी, डू यू थिंक हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज? Yes, sir. ये प्लीज करेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द perspective of examination as well. So this Hindi is not a national language. Please mark my words. Okay. So it's an official language, okay, of the union, not a national language. The Sir, then what is the language? India does not have any national language. भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 343 था जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, आर्टिकल 343। ठीक है। और क्योंकि आपको, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये उसमें दिया, मतलब पढ़ा होगा आपने कि क्योंकि मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना दिया गया था लेकिन काम नहीं चल पा रहा था हिंदी में। ठीक है। तो 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक एक्ट आया था, 1963, द ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्ट। ठीक है, जिसने इंग्लिश को हिंदी के अलावा एक अलाउ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तब से इंग्लिश है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। जी, एसोसिएट लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, कितने सेंसस हो चुके हैं अभी तक इंडिया में? Sir, what? हमने अभी ये बात की थी सेंसस ऑफ इंडिया 2001, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, टोटल कितने सेंसस हुए हैं? ये कुछ मुझे बातें मुझे याद आ जा रही हैं, इस वजह से पूछ ले रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज नॉट माय टॉपिक। नो, टोटल 15। ठीक है। 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा सेंसस ऑफ इंडिया है जिसको पोस्टपोन किया गया। केवल एक ही है आउट ऑफ दोज 15, केवल एक ही है जिसको पोस्टपोन किया गया। बताइए। ठीक है, आप मत बताइए, मैं ही बता दे रहा हूँ। ये जो हमारे, हाँ 21 में जो होना था वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन किया गया, इसके अलावा कोई भी सेंसस पोस्टपोन नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये सर 15 सेंसस हुए हैं। 15 ना 15? हाँ, यस 15। सर 51 से स्टार्ट होता है। नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया का हो गया। 51, 61, तो ये हो गए 2, 4, 6, 8 हो गए आपके इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है। और डिपेंडेंट इंडिया में 7 हुए थे और वो स्टार्ट हुआ था 1872। ठीक है, 1872 में स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, केवल एक सेंसस ऐसा है जो केवल जिसका ड्यूरेशन है 9 इयर्स का। वो क्योंकि जो पहला हुआ था वो 1872 में हुआ, उसके बाद में सेकंड हुआ 1881, उसके बाद फिर वही 81, 91, 10-10 साल का गैप रहा। पहला 9 साल का था। ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो सेंसस आया था उसके लिए जो एक्ट है वो 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। तो ओके, this was not I mean these things were not related to my topic, but it was important to have a talk on George Abraham Grierson। ठीक किया ना मैंने? नहीं आप बोलोगे लिंग्विस्टिक्स पढ़ाने लग गए। Yes, sir. इम्पोर्टेंट सर। ठीक, ओके, थैंक यू। सो यस,
सो ये जो वर्क है मेटाफिजिकल पोइट्स, दिस इज अ रिव्यू ऑफ metaphysical lyrics and poems of the 17th century by Herbert J.C. Grierson, और वो उनका नाम अब्राहम से शुरू होता है, इनका हर्बर्ट से शुरू होता है. ओके, नाउ importance of the essay if we talk about Samuel Johnson in the life of Abraham Cole criticized the metaphysical poets. आपको पता होगा who for the first time gave the term metaphysical poets? Samuel Johnson, right? Now he did not introduce this term in a positive sense. It was, in a negative approach. He said the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. ये किसका स्टेटमेंट है? सैमुअल जॉनसन का, when he introduced the term metaphysical poets. So it's abusive in his sense, right? और वर्क कौन था ये मैंने टेलेक्स नहीं किया, आप याद रखिएगा. किस वर्क में किया है? द लाइफ ऑफ अब्राहम काउले, वहाँ पर इन्होंने इसको मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बात की है. ओके, सो हेट्रोजेनियस, जेनियस एंड होमोजेनियस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होमोजेनियस का मतलब जिसमें सिमिलैरिटीज हो, हेट्रोजेनियस जिसमें सिमिलैरिटीज नहीं है. तो डिसिमिलर आइडियाज आर पुट टुगेदर वायलेंटली, राइट? ये बात करते हैं वो तो सैमुअल जॉनसन. ओके, सो बट इन हिज एसे Eliot praises the metaphysical poet the reason which Dr. Johnson criticized. डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज क्यों किया? वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि दो डिसिमिलर आइडियाज को बहुत ही वॉलेंटली, वॉलेंस का मतलब यहाँ पर है प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, राइट? तो उसको वो मतलब एक साथ कर देते थे, इस वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया सैमुअल जॉनसन ने. और इसी रीजन के लिए एलियट ने उनको प्रेज किया हुआ है. उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात थी. ठीक है, सो दिस इज द बैकग्राउंड. सो ओके, ये यहाँ टर्म ऑफ एब्यूज याद रखना है कि मतलब एब्यूसिव सेंस में इसको यूज किया गया था पहली बार. ठीक है, और लेकिन जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले जॉन डन को क्रिटिसाइज किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है. Now let us look the features of metaphysical poetry before we go. What does he mean by, Eliot mean by the appraisal of this metaphysical term? So ये लोग क्या करते हैं? The elaboration of a figure of speech to a level of a mind can think of. सभी ने ये पढ़ा होगा, comparison of the lover and the beloved with the compass. Yes sir, conceit. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो अब ये कैसे हो गए? मतलब डिसिमिलर आइडियाज, कहाँ कंपास कहाँ प्रेम, है ना? तो ये चेस बोर्ड से कर देते हैं, काउले चेस बोर्ड से करते हैं उसको कंपेयर, है ना? तो ये कह रहे हैं कि जहाँ तक माइंड पहुँच सकता है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचा देता है पोइट, और दो डिसिमिलर आइडियाज को लेकर के आता है, उसको कंपेयर करता है. तो एक कंपेयर कर रहा है चेस बोर्ड से दुनिया को, और एक लवर्स को कंपेयर कर रहा है कंपास से. तो अब ये चेस बोर्ड से दुनिया को कैसे कंपेयर कर रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट दीज टू आइडियाज, दुनिया और चेस बोर्ड, लवर्स और कंपास, जब तक कि उसको हम बहुत ही इंटेलिजेंटली ना सोचें, राइट? इसी वजह से कहा जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मेटाफिजिकल पोइट्स. दो दे यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज. लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होती है. डिफिकल्ट क्या है? उनके जो फिगर्स ऑफ स्पीचेज है, जो कॉन्सीट्स है उनकी, दैट इज डिफिकल्ट. कंपैरिजंस आर डिफिकल्ट, राइट? ये कहते हैं कि ये वर्ड्स ब्रीफ होते हैं लेकिन सडन कॉन्ट्रास्ट होता है. तो उन्होंने एक जॉन डन का रेलिक पोएम का भी रेफरेंस दिया है एलियट ने, जिसमें अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन. पढ़ा है आप किसी ने ये रेलिक, द रेलिक पढ़ा है किसी ने? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से बता दूं. पोइट इसमें इमेजिन कर रहा है कि उसके मरने के बाद क्या होगा. तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा जो वो अपने मतलब जो बिलव्ड है ना, उसके एक हेयर को उस पे इमेजिन करता है कि अपने हाथ पे वो ब्रेसलेट के तरीके से बांध लेता है. तो ये बोन क्या है? हाथ की, ठीक है, हाथ. और ये ब्रेसलेट क्या है? ब्रेसलेट इज ऑफ हेयर ऑफ द बिलव्ड, ठीक है.
तो अब वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि वो ग्रेव में है और वो तो पूरा डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन वो उसकी हड्डियां तो डिकम्पोज नहीं होती इतनी जल्दी, राइट। अब उसकी हड्डियों पर वो जो बाल है, बाल भी डिकम्पोज नहीं होता है, राइट। अब वो जो बाल है वो ब्रेसलेट बना हुआ है किस पर, द बोन्स दैट आर रिमेन्ड, दैट इज द इमेजरी, राइट। ओके, नाउ continuing with the feature, so he says heterogeneity of material compelled into unity by the operation of poet's mind। अब देखिए ये यूनिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान देना अभी आप, यूनिटी, ओके। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बट स्टिल इट इज वेरी रिफाइंड and Eliot says this is not a defect at all, it is the duty, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मतलब पोइट को जिस भी लैंग्वेज में अपनी बात वो अच्छी तरीके से रख पाए ऑडियंस के सामने, उसको उसमें रख देना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पोइट टू शो थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ प्रेजेंटेबल वे टू क्रिएट एन इफेक्ट। जो भी उसको लगता है कि दिस इज द मोस्ट प्रेजेंटेबल वे, उस वे में उसको अपनी बात को रखना चाहिए। इसके लिए वो एंड्रयू मार्वेल को प्रेज करते हैं। एंड्रयू मार्वेल में क्या है, उनका स्पेशली जो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है उसमें उन्होंने शॉर्ट सिलेबल्स यूज किए हैं। आई बिलीव दैट यू नो सिलेबल्स, ये भी लिंग्विस्टिक्स का है, सिलेबल याद है? यस सर। ओके, तो शॉर्ट सिलेबल्स यूज किए हैं, ठीक है, किसके लिए, वो मतलब जो भी उनको डिजायर्ड इफेक्ट वो क्रिएट करना चाहते थे उसके लिए। क्रॉशा ने सेंट टेरेसा में लॉन्ग सिलेबल यूज किए हैं डिजायर्ड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल पोइट की फ्रीडम है कि जो भी आर्टिस्टिक अचीवमेंट वो क्रिएट करना चाहता है, जो भी इफेक्ट वो प्रोड्यूस करना चाहता है इन द माइंड्स ऑफ द रीडर, वो अपनी जो जिस टाइप की भी लैंग्वेज यूज करना चाहे वो कर सकता है, एंड दिस इज गुड, राइट। नाउ रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग की ये बात करते हैं। अब यहाँ पर ये दो, एक इंटेलेक्चुअल पोइट की बात करते हैं और ये रिफ्लेक्टिव पोइट की बात करते हैं। लेकिन ये हम समझने से पहले कि इंटेलेक्चुअल पोइट क्या है, रिफ्लेक्टिव पोइट क्या है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसमें, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कोई आइडिया हो तो बताइए। आइडिया तो होगा ही, आई बिलीव सो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आप में से कोई थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। क्या मतलब है? एनी आइडिया? बोलो भाई अनुज जी। हेलो सपना, आर यू अराउंड? I hope I am audible now. Yes, sir. Oh, I was disconnected. Okay, I'm sorry. No issues there. Should I write in the group to ask the people to join? Please somebody write. Okay, so that those who have left they can join. किसी ने लिख दिया? Please ask those who have left. Yes, sir. Ask Yes, them. sir. Okay, okay, ठीक है. Okay, so we were talking about this. Okay, we'll discuss intellectual poet and reflective poet a little later, but before
this, let us discuss dissociation of sensibility. So I was asking you whether you have any idea of dissociation of sensibility. Of course you will have. Devoid of emotions, sir. Devoid of emotions. Are you sure? Yes. Any other idea? यही पढ़ा है. अच्छा ठीक है. और any other idea? Okay. Now background for this dissociation and yes, intellectual thoughts. Intellectual thoughts are different from experience and feeling. Experienced feeling. ओके. अच्छा ठीक है. ओके. आप पहले ये देख लीजिएगा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. ये टी.एस. एलियट ने तो इसको फेमस किया है, ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं थोड़ा नीचे की. इन्होंने द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपोलोनियन एंड डायनोसियन ड्राइव्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ड्राइव्स, ठीक है. अब अपोलोनियन और डायनोसियन कौन थे? ये दोनों ही थे सन्स ऑफ ज्यूस, ठीक है. अपोलो इज द गॉड ऑफ द सन ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड ऑर्डर एंड अपील्स टू लॉजिक. अपोलोनियन क्या करता है? रैशनल थिंकिंग की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, इंटेलेक्ट की बात करता है. ओके. दूसरे डायनोसिस कौन है? द गॉड ऑफ वाइन, ठीक है. अब जो गॉड ऑफ वाइन है वो किसकी बात करेंगे? वाइन और डांस की. वो अपील्स टू इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से है, अपोलोनियन एंड डायनोसियन, ठीक है. जो अब एक इसमें ये है कि इंटेलेक्ट की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है, एक जगह बात हो रही है इमोशंस की और इंस्टिंक्ट्स की, ठीक है. द फ्यूजन ऑफ डायनोसियन एंड अपोलोनियन फॉर्म्स ड्रामेटिक आर्ट्स. उन्होंने ये एक टर्म दिया है, मैं इसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे पढ़ेंगे? कंस्ट्राइव क्या पढ़ोगे, जिसका मतलब है आर्टिस्टिक इम्पल्सेस, ठीक है. तो अगर दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो क्रिएट होता है ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है. ना अब देखिए मेटाफिजिकल पोइट्स ने क्या किया, इनके अंदर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं थी, इनके अंदर क्या था? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. अब सेंसिबिलिटी क्या है? सेंसेस. वी हैव 5 सेंसेस, राइट? आईज, ईयर, then tongue, then skin. Okay, what is left? Nose, या ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, जो सेंसेस हैं उनको यूनिफाई किया. और कैसे यूनिफाई किया? विद द इंटेलेक्ट, ठीक है. अब इन्होंने जो इमेजरी क्रिएट की, ये सभी ने ये स्टेंजा पढ़ा होगा, आई बिलीव सो, ठीक है. इफ दे बी टू, दे आर टू, सो एज स्टेड इफ स्टिफ ट्वन कंपासेस आर टू, दाई सोल द फिक्स्ड फूट. तो ये तो हो गया, ये वाला फूट हो गया किसका? प्रेमिका का हो गया, ठीक. एंड दिस वन ऑफ द लवर, ठीक है. सो दिस इज दिस द लवर ऑफ द फूट इज मेकिंग अ सर्कल, ठीक है. तो ये दूर जरूर है इससे. लवर इज नॉट नियर द बिलव्ड. द लवर इज मेकिंग अ सर्कल. आपने याद होगा जो आप वो जो पोएम है वैलेडिक्शन, तो पोइट कहीं जा रहा होता है, वो अपनी लवर से कहता है मैं दूर जरूर जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ. पढ़ी होगी पोएम आप लोगों ने, राइट? सो यू मस्ट नॉट क्राई एज लाइक अ डाइंग मैन, राइट? तो वो कहता है कि हम दोनों लोग मतलब एक कंपास के दो ट्विन की उसके जो दो ट्विन है, स्टेप ट्विन है, उसकी तरीके से हैं. तुम हो एक जगह पे हो और मैं थोड़ी दूर हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आई एम मेकिंग अ सर्कल अराउंड यू. और वो हमारे जो दोनों जो दोनों लेग्स हैं वो कनेक्टेड है, मतलब ये सोल कनेक्टेड है, राइट? अब इन्होंने क्या किया, मतलब एक तो सीधी एक बात कही कि मतलब वी आर 2 बॉडीज एंड 1 सोल. अगर इतनी ही बात करनी है कि 2 बॉडीज एंड 1 सोल, ठीक है, तो आप रोमांटिक पोइट्स के पास चले जाइए. वो 2 बॉडीज और 1 सोल कैसे हैं, बहुत सारी इमेजरी देंगे, और ऐसी इमेजरी देंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी. यू कैन विजुअलाइज. एम आई राइट? यू कैन इजीली विजुअलाइज. लेकिन इन्होंने जो इमेजरी दी, कंसीड दिया, ये आसानी से विजुअलाइज कर सकता है कोई?
जब तक उसको पूरा तरीके से समझे ना नहीं कर पाएगा। अब उसने उसमें क्या नाम ये वाला जो मैं बात कर रहा था, सॉरी किसकी बात कर रहा था, ये मैं कुछ बात कर रहा था ये जो काउले ने वर्ल्ड को कंपेयर किया चेस बोर्ड से। आप बताइए कैसे कंपेयर होगा? इट्स डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट far-fetched conceits, राइट? नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, आपको एक तो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, मतलब यू नीड टू अप्लाई लॉजिक, यू नीड टू अप्लाई इंटेलेक्ट, ठीक है ना, एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू अप्लाई द इमोशंस। वही पोइट कर रहा है, पोइट क्या कर रहा है, इमोशंस को भी अप्लाई कर रहा है और साथ में इंटेलेक्ट को भी अप्लाई कर रहा है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, अपोलोनियन कॉन्सेप्ट एंड डायनोसियन ड्राइव्स, ये जो दो ड्राइव्स हैं, एक तो इमोशनल ड्राइव है, दूसरी लॉजिकल ड्राइव है। ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही ड्राइव्स को यूनिफाई कर करके एक नए वर्क को क्रिएट कर रहे हैं। इसी चीज को सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया। सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, हेटेरोजेनिक आइडियाज को एक साथ ला देते हैं, दो डिसिमिलर आइडियाज को एक साथ ला देते हैं। इसी वजह से उनको मतलब उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था। इसी चीज को ये प्रेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि these two people unifies two dissimilar ideas with the help of both emotions and intellect, ठीक है। अब डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, नाइटिंगेल को देख रहे हैं, है ना, नाइटिंगेल के बारे में मतलब सपना देख रहे हैं। अब जो रीडर है वो भी उसी सपने में पहुंच जाएगा धीरे धीरे। तो उसको इंटेलेक्ट लगाने की जरूरत है क्या? उसको इंटेलेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। पोइट जहां घूम रहा है, आप भी वही, रीडर भी वही घूम रहा है आराम से, राइट? सो रोमांटिक्स क्रिएटेड इमेजरीज, ऐसी इमेजरीज जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। सो पीपल डिड नॉट I mean they did not apply their intellect to understand their poetry, right? तो यहां पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन किसका हो रहा है, अपोलोनियन ड्राइव एंड डायनोसियन ड्राइव, ठीक है। मतलब एक यहां पर है, यहां पर केवल कौन सी ड्राइव है, सॉरी यहां पर कौन सी ड्राइव है, जो इमोशनल ड्राइव है, गॉड ऑफ वाइन, ठीक है। और यहां पर कौन सी ड्राइव्स हैं, दोनों ड्राइव्स हैं। तो इसी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है ये। ऑलराइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एसोसिएशन और डिसोसिएशन से क्या मतलब है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, एक है, या तो इमोशन है या इंटेलेक्ट है। यूनिफिकेशन में क्या हो रहा है, दोनों हैं, केवल इतना सा डिफरेंस है दोनों में। यूनिफिकेशन में दोनों ही ड्राइव्स हैं और डिसोसिएशन में केवल एक ड्राइव है। इज दैट क्लियर? Yes, okay okay now coming back, so Eliot says intellectual poet, I mean to John Donne he uses the term as an intellectual poet. A thought to Donne was an experience, it modified his sensibility. अब जब वो रिफ्लेक्टिव पोइट की बात करते हैं तो कहते हैं टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोइट्स एंड दे थिंक बट दे डू नॉट फील। ध्यान दीजिएगा। अब देखो वहां पर क्या है, इंटेलेक्चुअल पोइट में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस है, मतलब इमोशंस हैं, थिंकिंग है, सेंसिबिलिटी के साथ में उसको वो यूनिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। टेनिसन और ब्राउनिंग, दे थिंक बट दे डू नॉट फील, they are thought as immediately as the order of a rose. अब जो विक्टोरियन एरा है, विक्टोरियन एरा इज नोन फॉर व्हाट, जल्दी बोलो। इमेजिनेशन नहीं है sir. हाँ जी, इमेजिनेशन नहीं है, लॉजिक है ना, इंटेलेक्ट है। तो अब वो क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब एक है उसमें, दोनों नहीं है। रोमांटिक एरा में क्या है, केवल इमेजिनेशन है, लॉजिक नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्स में दोनों था, ठीक है। इसी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ द सेंसिबिलिटी, ठीक है। नाउ
Now Eliot links metaphysical poets to Elizabethan playwrights. Elizabethan playwrights आपको पता ही है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्स की जो क्वालिटीज हैं वो एलिजाबेथन प्लेराइट्स में भी थी. सो दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड हैव यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. तो अगर आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो आपके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, है ना. शेक्सपियर जब बात करते हैं उसकी से सपोज मैकबेथ, है ना, तो मैकबेथ में वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी है. अगर विचेस का सीन है तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिससे वो ऑडियंस को रिलेट कर पा रहा है उसको, ठीक है ना. और अब उसमें इमेजरी भी है, मतलब इमेजिनेशन भी है और इंटेलेक्ट भी है. आपने बहुत सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज भी है उसमें, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, राइट. दे फाउंड द वर्ल्ड एज यूनिफाइड होल. कौन? ये these metaphysical poets. In their poetry, thought and feeling affected each other. ये important है. तभी हुआ unification. Unification of what? Thought and feeling, right? Logic and imagination. Logic and emotion. As both are unified whole. Eliot puts on top John Dryden. John Dryden is on top and other metaphysical poets of the 17th century, and lowers down to whom? The poets of 18th century and 19th century. क्योंकि in the poets of 18th century and 19th century there was no unification of sensibility. इनको टॉप पर क्यों रखते हैं? Because there was unification of sensibility. यहाँ पर क्या था? Dissociation of sensibility in the 18th century and 19th century. Is that clear to all of you? Yes, sir. Okay. ओके. नाउ इसके बाद वो तो थोड़ा फ्रेंच लिटरेचर की बात करते हैं इसी ऐसे में, और ये बात करते हैं रेशन एंड बॉडलेयर की बात करते हैं, ठीक है. तो रेशन थे 17th सेंचुरी के और बॉडलेयर थे 19th सेंचुरी के, ठीक है. तो कहते हैं कि फ्रेंच लिटरेचर जो है उसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है फ्रॉम रेशन टू बॉडलेयर. ये दो नाम याद रखना क्योंकि इनका रेफरेंस पूछा जा सकता है कि कौन से फ्रेंच पोइट्स की बात करते हैं वो, ठीक है. तो इन्होंने दे वर मोर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द सोल. ओके. नाउ मिल्टन एंड ड्राइडन सक्सीडेड बाय डिसरिगार्डिंग द सोल. इन्होंने सोल की बात की, मतलब इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों की बात की, ठीक है. मिल्टन और ड्राइडन ने क्या किया? disregarding disregarded the soul, and that's why he says English poetry has remained so incomplete in comparison to French literature. क्योंकि फ्रेंच में आपको यूनिफिकेशन मिलेगा लेकिन इंग्लिश पोइट्री में डिसोसिएशन मिला है, ठीक है. अब कंक्लूडिंग लाइंस में ये नाम आपको याद रखना है. इनको कहते हैं ये कि ये बहुत ही अच्छे पोइट्स थे ऑफ मेटाफिजिकल टाइम और मेटाफिजिकल एज, ठीक है. जॉनसन टॉर्चर, ये लाइन देख ली, याद रखिएगा. जॉनसन टॉर्चर चीफली द चीफ ऑफेंडर्स. और भी चीफ ऑफेंडर्स कौन है जॉनसन के लिए? काउले एंड क्लीवलैंड, ठीक है. और उसके बाद में उन्होंने एक सजेशन दिया है. अब कोई शायद मैं आना चाह रहा तो कोई फायदा भी नहीं है, चलो फिर भी. ओके. यस, उन्होंने कहा कि ये ऑरेलियन टाउनशेंड, इनका जो वर्क है डायलॉग बिटवीन अ पिलग्रिम एंड टाइम is one of the few regrettable omissions from the excellent anthology of Professor Grierson. ग्रियर्सन कौन है बताइए जल्दी से, किस ग्रियर्सन की बात हो? राइट. तो उन्होंने बोला कि इनको अगर ये जो है ना ये वाले वर्क को और अगर इंक्लूड कर लेते तो बहुत अच्छा रहता. ये कहते हैं कि रिग्रेटेबल ओमिशन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलियट क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा वर्क और इंक्लूड करना चाहिए था प्रोफेसर ग्रियर्सन को. Thank you. If you have any question, any suggestion, anything that you want to discuss, any feedback. Thank you, sir. Lecture was very good, sir. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. Next topic क्या होगा? क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? Sir, next topic क्या होगा?
एक तो हम हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की तो बात कर ही ली है अभी, है ना। उसके बाद में आपका क्या बच रहा है सिलेबस में? सर एफआर लेविस बचे हुए हैं। हाँ हाँ